Viewers, another breaking update, in fact, coming in from West Bengal, wherein a high-stakes political environment as the state is preparing for election on April 23rd and 29th. Chief Minister Mamata Banerjee has accused the BJP of conspiring to create unrest in Malda, alleging they brought in outsiders to provoke violence. She alleged that the recent Malda incident, where 7 judicial officers, including 3 women, were held hostage by villagers on Wednesday, was a pre-planned conspiracy orchestrated by outsiders brought from Mumbai, asserting that the state CID has made arrests while the NIA failed. Addressing the situation at a public meeting in Hazari Park ground, Mamata Banerjee claimed the incident in Malda has been taken up by the CID. People were brought in from Mumbai. They had hired individuals and planned everything. But while the NIA could not catch them, CID has arrested them. The mob was protesting the SIR exercise of electoral rules, alleging that the names of roughly 1.2 crore voters under adjudication had been deleted or marked for removal. She claimed that the BJP is trying to exploit the situation to its advantage, questioning the massive bureaucratic reshuffle ordered by the ECI to ensure neutrality. BJP is bringing in money using CRPF vehicles. Elections are being held in 5 states. A total of 506 officers have been transferred, of which 483 are from Bengal alone. The game is on and it will be intense. That's the statement that's come out. Renik Datta is there with me now, my colleague, who I will go to. Renik, we were just speaking with the BJP state president of West Bengal, and he is of course rubbishing rumors or the allegations that Mamata Banerjee has put on the BJP, saying that it is the BJP that orchestrated the violence in Malda and that people were brought in from Mumbai to do so. What is your information that you are picking up from your sources on the ground? देखिए मालदा का जो मोथाबारी में जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को लेकर पॉलिटिकल जो टसल वो चल रहा है, मगर इंसिडेंट जिस जगह पर हुआ था उस जगह का अगर हकीकत देखेंगे तो क्या घटना घटा था वो उसका एक आपको नमूना देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ एकदम मालदा मोथाबारी जो बीडीओ ऑफिस है, इस बीडीओ ऑफिस के सामने, जिस बीडीओ ऑफिस में 1 तारीख सुबह एसआईआर का काम चल रहा था और एसआईआर का काम में जो 7 जुडिशियल ऑफिसर वो लोग शामिल थे। मैं एक बार आपको अंदर जाकर दिखाने का कोशिश करूंगा। ये जो बीडीओ ऑफिस के अंदर में जा रहा हूँ। ये ऑफिस का ये जो जगह है आप देख ही सकते हैं, एफएसटी सेल फ्लाइंग स्क्वाड टीम, ये जो ऑफिस है इस जगह पे ये जो रूम है, इस रूम के अंदर ही काम चल रहा था। जो एसआईआर का प्रोसेस का काम इसी जगह पर चल रहा था, जिस जगह पर टोटल 7 जजेस मौजूद थे। आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क, ये जो लिखा हुआ है हेल्प डेस्क, इस जगह पर ही एसआईआर का जो काम जो एडजुडिकेशन में जिन लोगों का नाम था उन लोगों का जो सुनवाई का काम इस जगह पर ही चल रहा था और इस जगह पर ही जजेस मौजूद थे। क्या घटना घटा था सुबह से जब काम चल रहा था, उस काम चलने के दौरान ही प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट चालू हुआ था। चालू होने के बाद ही जो लोग प्रोटेस्टर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा था। पूरा एरिया को घेर लिया था। पूरा एरिया को घेरने के बाद वो प्रोटेस्टर जो है वो अंदर आकर पूरा ये जो गेट है, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, ये जो बाहर वाले गेट है, ये बाहर वाले गेट को पूरा लॉक कर दिया गया था। इस जगह पर ऐसे ताला लगाकर लॉक कर दिया गया था। लॉक करने के बाद इस जगह पर जो प्रोटेस्टर थे ये पूरा एरिया को पूरा घेर लिया था। अंदर पे एक दुकान है, वो दुकान भी उस टाइम में चल रहा था, मगर उस टाइम पर जो प्रोटेस्टर थे वो लोग ये दुकान को बंद नहीं किया था, मगर बाहर से पूरा दुकान को घेर लिया गया था। जो इस जगह का जो लोग है वो भी वही कह रहे हैं कि इस जगह पर जो प्रोटेस्टर थे वो पूरा इस एरिया को पूरा सील कर दिया था। मैं एक बार देखता हूँ अगर अंदर में कोई है तो मैं बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आप लोग क्या उस दिन मौजूद थे 1 तारीख को? আমি উপস্থিত ছিলাম না। কি হয়েছিল জানেন? না, একটু ঝামেলা হয়েছে শুনেছি, কিন্তু আমরা উপস্থিত, আমার বাড়ি এখান থেকে মোটামুটি 9 কিলোমিটার।
झमेला हुआ था सुनाई दिया है, मगर क्या हुआ था एग्जैक्ट मालूम नहीं। मैं एक बार जानने का कोशिश करूंगा जो इधर का जो लोकल लोग हैं उन लोगों के साथ भी बात करूंगा, क्योंकि अब देखिए दो गेट है इस जगह का, इस बीडीओ ऑफिस का दो गेट है। पहला गेट से अंदर आ सकते हैं और दूसरा ये जो छोटा वाला गेट इससे भी अंदर आ सकते हैं। और इधर बाहर ही बहुत सारे दुकान है, जो छोटा मोटा दुकान वो लोग भी इधर उस टाइम में मौजूद थे। मैं एक बार एकदम डायरेक्टली बात करने का कोशिश करूंगा। सर, ये 1 तारीख को प्रोटेस्ट कब चालू हुआ था? 10টা 11টা থেকে 11 बजे के आसपास। 10-11 बजे। पूरा ये एरिया को घेर लिया गया था। कितने लोग थे? लोग तो बहुत था, बहुत लोग था। क्या कर रहा था वो लोग? ओ वोटर के लिए কাগজ বলছে কাগজটা ঠিক করে দাও, ওটাই কথা। আমরা কম চলে গেলাম। वोट जो जिन लोगों का नाम कटा है वो लोग। हाँ। अंदर क्या वो जज भी मौजूद थे? আমরা তো বাইরেই ছিলাম, আমরা তো ভিতরে কথা তো বলতে পারবো না কে ছিল না ছিল, আমরা বাইরে। तोड़फोड़ हुआ था, तोड़फोड़ कर रहे थे वो लोग? না, তোড়ফোড় দুপুরবেলা नहीं। पुलिस कब आया था? कौन सा पुलिस? ये तो पुलिस स्टेशन। পুলিশ তো দিন থেকে था, গোটা দিন মানি ছিল, দিনের বেলাও ছিল পুলিশ গোটা দিন। पुलिस क्या कर रहा था इधर जब प्रोटेस्ट चल रहा था? এগুলো আমরা তো ঠিক বলতে পারছি না। আমরা পুলিশ তো ছিল গোটা দিন মানে পুলিশ ছিল কম বেশ, পুলিশ তো থাকবেই। पुलिस था, पुलिस इधर मौजूद था, पुलिस के सामने ही प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। ये पूरा घटना के बाद पूरा आप एरिया देखिए, पूरा एरिया को अभी पुलिस की तरफ से पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया गया है, सेंट्रल फोर्सेस का जो ऑफिसर उनको इधर डिप्लॉय किया गया है। इस जगह पर किसी भी तरीके का गैदरिंग ना हो उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही मेनली जो इस जगह पे जो गैदरिंग हो रहा था उनको रोकने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पूरा ये जो रास्ता, ये पूरा रास्ता बंद था। मेरे पीछे अब ये जो रास्ता देख रहे हैं यही NH-12 कनेक्ट करता है। और रात को 12 बजे इसी रास्ते से, इसी गेट से जो जजेस है उनको रेस्क्यू करके ले जाया गया था। ले जाने के टाइम पर भी ये रास्ते में ब्लॉकिंग हुआ था। इस रास्ते में जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से ब्लॉक किया जा रहा था। मेनली आप देख ही सकते हैं कि ये है मेन जो बीडीओ ऑफिस, इसी जगह पर यह घटना घटा था। इस जगह पर ही जो जजेस वो लोग मौजूद थे। 3 महिला जजेस इधर मौजूद थे, उसके साथ टोटल 7 जजेस मौजूद थे। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। ठीक इसी जगह पर SIR का जो कार्यक्रम वो चल रहा है। मालदा जिला का ये जो रूम है बीडीओ ऑफिस का, ये जो रूम, इसी रूम पर जो काम चल रहा है। और इस जगह पर ही जो जजेस वो लोग मौजूद थे। SIR का प्रक्रिया का जो कार्यक्रम वो उनकी तरफ से किया जा रहा था। और उनकी तरफ से जब काम किया जा रहा था ठीक उसी टाइम पर प्रोटेस्ट चालू हुआ था। प्रोटेस्टर आके जो इन लोगों को घेर लिया था, इन लोगों को बंदी बना लिया गया था। और अभी पुलिस प्रोटेक्शन इधर दिया गया है, पुलिस और सेंट्रल फोर्स इधर डिप्लॉय किया गया है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो इस जगह से करीब 200 मीटर का दूरी पर है मोथाबारी पुलिस स्टेशन। यानी पुलिस स्टेशन से इस जगह का दूरी ज़्यादा नहीं है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा आपको कि इस जगह से कितना दूरी पर पुलिस स्टेशन है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पुलिस का इधर आने पर टाइम नहीं लगता है, मगर पुलिस आने पर टाइम बहुत लगा दिया। आपको जो चौड़ाई दिखाई देगा, इस चौड़ाई से लेफ्ट साइड में करीब 50 मीटर का दूरी पर ही मोथाबारी पुलिस स्टेशन है। और उसी पुलिस स्टेशन से इस जगह पर पुलिस आकर जजेस को रेस्क्यू करने पे टाइम लगा टोटल 12 घंटा। क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो आई विटनेसेस है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे के आसपास ही यह प्रोटेस्ट जो है वो चालू हुआ था। मगर रात को 12 बजे के बाद जो जजेस है उनको रेस्क्यू किया गया। यानी बीडीओ ऑफिस के सामने SIR का प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से जजेस को रोका गया था, उसको लेकर सवाल आ रहा है पुलिस का भूमिका को लेकर। पुलिस उस टाइम में क्या कर रहा था, पुलिस की तरफ से सही तरीके से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए
तो 7 जजेस इधर जब मौजूद थे उनको रेस्क्यू करने पर पुलिस को इतना टाइम क्यों लगा, ये सवाल ही अभी आ रहा है। अभी फिलहाल इस जगह पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है और उसके साथ साथ ही इस बाहर एरिया में यानी बीडीओ ऑफिस के ठीक बाहर एरिया में भी आप देख सकते हैं कि दुकान के सामने भी सेंट्रल फोर्स मौजूद है। एकदम बाहर का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए और उसके साथ साथ ही किसी भी तरीके का मॉब तैयार ना हो, किसी भी तरीके का घटना ना घटे, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। सेंट्रल फोर्स इधर लगातार हर एक जगह पर मॉनिटर कर रहे हैं और जो लोकल दुकान है, मैं एक बार चलिए बात करने का एक बार कोशिश करते हैं कि जानने का कोशिश करते हैं कि उस दिन सही तरीके से क्या हुआ था, कितने बजे से ये मॉब आया था, कितने बजे से प्रोटेस्ट चालू हुआ, ये पूरा जानकारी एक बार जानने का कोशिश करेंगे। दादा, उस दिन जो 1 तारीख कितने बजे लोग आया था, प्रोटेस्ट कब चालू हुआ था? तब नहीं था मैंने। आप लोग नहीं थे? ना, अभी क्या माहौल है? अभी तो देख रहा है अपना, अभी तो शांत है। अभी शांत। तो उस दिन क्या पूरा दुकान बंद करके रखा गया था? नहीं आया था हम लोग। आप लोग नहीं आए थे। दादा, उस दिन क्या आप लोग थे? दुकान खुला था? दुकान मेरा खुला था, मेरा तो पैथोलॉजी क्या है। हालत था उधर, कब चालू हुआ था प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट सुबह 11 बजे तक। 11 बजे तक चालू हुआ था। दादा, 7 जजेस को इधर रोका गया था। पुलिस स्टेशन कितना दूरी पर है इधर से? मैं इस ब्लॉक का ही नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। मैं इधर मेरा पैथोलॉजी है। मैं इधर पुलिस 4 बजे स्टेशन निकल गया। इधर पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन है इधर, उधर है पुलिस स्टेशन। तो आप जब 4 बजे निकले थे तब क्या सिचुएशन था? नॉर्मली था, हर रोज प्रोटेस्ट, ऐसे ही प्रोटेस्ट होता था। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? वो नहीं, नाम डिलीट होने जिसका नाम डिलीट हो गया वो लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पुलिस उधर मौजूद था? हाँ, सभी था, पुलिस भी था, सीआरपीएफ भी था, सब लोग। पुलिस सेंट्रल फोर्स दोनों ही मौजूद थे। एकदम पुलिस सेंट्रल फोर्स दोनों ही मौजूद था, उनके सामने ही प्रोटेस्ट हो रहा था और सुबह 11 बजे से प्रोटेस्ट चालू हुआ। मगर देखिए, जितना टाइम जा रहा था उतना ही जो प्रोटेस्ट का परिमाण वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और उसी का नतीजा पर देखने को मिला कि रात 12 बजे तक बीडीओ ऑफिस के अंदर 7 जजेस को रुककर बंदी करके रखा गया था। 7 जजेस इधर बंदी था, उसके बाद पुलिस आकर उनको रेस्क्यू करके ले जाया। मगर ले जाने के टाइम पर भी जो वीडियो सामने आया है उसमें भी साफ दिखने को मिल रहा है कि जाने के टाइम पर भी उन लोगों के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, गाड़ी को रोकने का कोशिश किया, रोड ब्लॉक किया गया और ये पूरा घटना में इन्वॉल्वमेंट किसका है ये जांच करने के लिए एनआईए को पूरा मामले को सौंप दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एनआईए के हाथ में इसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया है और उसके साथ साथ ही एनआईए का 15 ऑफिसर का जो टीम वो कुछ ही समय पर ही इस जगह पर आएगा, कुछ समय पर ही आकर जो इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी वो टेक ओवर करेगा, क्योंकि मोथाबारी पुलिस स्टेशन की तरफ से ऑलरेडी 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सीआईडी की तरफ से ये पूरा घटना के साथ जुड़े हुए 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से दो लोग आईएसएफ का लीडर है, ऐसा ही पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। यानी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ ही जो 2 को सीआईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक जिसके डायरेक्ट कनेक्शन दिखने को मिल रहा है मीम के साथ और इसी वजह से ये पूरा घटना के साथ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी पुलिस की तरफ से ध्यान में रखा जा रहा है और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसका जांच भी किया जाएगा। जी, रहने का धन्यवाद आपका इस जानकारी